Welcome to the lectures on digital image processing. This is our first lecture. In this, I will give you the introduction about digital image processing. The term digital image processing comes from the three words. The first one is digital, image, and then processing. Fine. Digital means that we are having the digital content, like we are having zeros and ones in the digital signals. Fine, we are having two type of signals, analog signals and digital signals. Analog signals are continuous signals, and digital signals are the discrete signals which are not continuous, and they are giving the values at different um, different points. Fine. So image is the picture, as you are looking at me, or you are clicking the photos in your phone. These are the images. And when we are doing some processing, when we are let's say when you are having the photograph in your mobile, sometimes you say that the image is blur, or sometimes you want to change the contrast of the image. The things which we are doing on that image are comes under processing. Fine. So when we are combining all these things, they comes under digital image processing. Means first we convert the image into the digital form, then we can do the processing on the images. So signal processing is a discipline in electrical engineering, in mathematics, that deals with analysis and processing of analog and digital signals. Signal processing, basically, as you have studied digital signal processing as a subject. Signal processing means when we are applying some processings on the signal. As I have told you that we are having two type of signals, analog signals and digital signals. So the processing, whether we are applying filter, we are increasing the amplitude, or we are we want to transmit the signal, whatever the processes we are applying, that comes under the category of processing. It is basically we are dealing with the mathematics as well. So as here it is written, deals with sorting, filtering and other operations on signals. These signals include transmission signal, when we want to send the signals, sound or voice signals, image signals and other signals. Voice signal, as I am speaking, this is a voice signal. Fine. Image signal, as I have told you that the image in your mobile is a image signal. When you want to transfer your image from one phone to another, you have to convert that image into the digital form so that the transmission can take place. Okay. Out of all these signals, the field that deals with the type of signals for which the input is an image and output is an image is done in image processing. As its name suggests, it deals with the processing on images. Means that when let's say we are having some processor, let's say we are having input, this is processor and this is output. When input is my signal and output is my input is image and output is image, that is called image processing. Fine. Analog versus digital image processing, as there are the two terms, one is scene and another is image. The difference between scene and image is that as I am looking at you, है ना, मीन्स मैं आपको देख रही हूँ या आप मुझे देख रहे हो, है ना, तो हम सीन कर रहे हैं. ठीक है. और इस सीन को आपने कैप्चर किया अपनी आईज में, या आपने कैप्चर किया इसको विद द हेल्प ऑफ द कैमरा. ठीक है. व्हेन वी आर कैप्चरिंग द सिग्नल, व्हेन वी आर कैप्चरिंग द इमेज, दैट कन्वर्ट्स इनटू द इमेज. ओके. सो द डिफरेंस बिटवीन सीन एंड इमेज इज दैट लुकिंग, जो रियल टाइम सिग्नल है, जो हम देख रहे हैं, हम विजुअलाइज कर रहे हैं, दैट इज सीन, और जो हम कैप्चर कर रहे हैं, दैट इज इमेज.
और जो रियल टाइम सिग्नल है जिसको हम सीन बोल रहे हैं, वी कांट डू द प्रोसेसिंग ऑन दैट. वाई? बिकॉज दैट इज, वो हमारे अभी लैपटॉप में नहीं है ना, वो हमारे पीसी पे नहीं है, उसको कोई प्रोसेसर नहीं हमने लगाया. ठीक है. व्हेन वी आर अप्लाइंग द प्रोसेसर, व्हेन वी आर doing some processing on that signal, that is called image processing. Fine. When you are capturing that signal, that comes into your camera. Okay, so you are converting that analog signal, means जब हम देख रहे हैं वो हमारा एनालॉग सिग्नल है. ठीक है. जब आपने उसको कैप्चर करके अपने पीसी में या उसमें लैपटॉप में किया, तो उसको प्रोसेस करने के लिए यू नीड टू कन्वर्ट दैट सिग्नल इनटू द डिजिटल फॉर्म. ठीक है. वो डिजिटल फॉर्म में आप कैसे कन्वर्ट करोगे? विद द हेल्प ऑफ द सैम्पलिंग और क्वांटाइजेशन. ठीक है. सैम्पलिंग जो उसको सैंपल्स में कन्वर्ट करेगी और क्वांटाइज उसको एक लेवल पे फिक्स करेगी, सो दैट आवर एनालॉग सिग्नल is converted into digital form. Fine. So I'm reading this. Analog image processing is done on analog signals. It include processing on two-dimensional analog signals. In this type of processing, the images are manipulated by electrical means by varying the electrical signal. Means when we are talking about the analog signal, it means we are talking about in terms of the electrical signals. Fine. The common example includes the television images. ठीक है. जो सैटेलाइट से हमारे पास सिग्नल्स आते हैं, ठीक है, वो हम अपने टीवी पे देखते हैं, दे आर द एनालॉग सिग्नल्स. Digital image processing has domain over analog processing. With the passage of time, due its wider range of application. जो image processing है, इसकी एक मतलब in every field we are having the applications. In medical science we are having the application, astronomy में है, ठीक है, agriculture में है, in real time applications there are so many applications. Okay. The digital image processing deals with developing a digital system that performs operation on a digital image. ठीक है. What is image? Now we are talking about the image. So what do you mean by that image? An image is nothing more than a two-dimensional signal. जब हम analog signal की बात करते हैं, analog signals are one-dimensional signals. ठीक है. One-dimensional means we are having the single signal. Okay. It is defined by the mathematical, but जो images होती हैं, they are two-dimensional सिग्नल्स. जैसे वन डिमेंशनल सिग्नल्स होते हैं हमारे एफ ऑफ एक्स. ठीक है. कोई भी हम एफ ऑफ एक्स सिग्नल की बात करते हैं. ठीक है. बट जब हम इमेज प्रोसेसिंग की बात करते हैं, वी आर हैविंग टू डिमेंशनल सिग्नल्स एफ ऑफ एक्स वाई. ठीक है. वेयर एक्स एंड वाई आर द टू कोऑर्डिनेट्स. हमारे एक्स और वाई कोऑर्डिनेट्स होते हैं हॉरिजॉन्टली एंड वर्टिकली. ठीक है. द वैल्यू ऑफ एफ ऑफ एक्स वाई एट एनी पॉइंट इज gives the pixel value at that point of an image. f of xy क्या है कि हमें इंटेंसिटी वैल्यूज देता है. इंटेंसिटी क्या होता है? पिक्सल वैल्यूज. जैसे कलर्स दिखते हैं ना हमें पिक्चर में, तो वो जो कलर्स हैं, दीज आर द इंटेंसिटी वैल्यूज. लेट्स से आई एम टॉकिंग अबाउट अ ब्लैक एंड व्हाइट इमेजेस. ठीक है. उसमें दो ही कलर्स होते हैं, ब्लैक एंड व्हाइट. ठीक है. तो दैट आर द इंटेंसिटी वैल्यूज. ब्लैक इंटेंसिटी, व्हाइट इंटेंसिटी. ठीक है. अगर हम ग्रे स्केल इमेजेस की बात करते हैं, ग्रे स्केल इमेजेस होती हैं, उनकी रेंज होती है 0 से L-1, मतलब 0 से 255 तक होते हैं. ठीक है. 0 इज ब्लैक, 1 इज व्हाइट. ठीक है. तो 0 से 1 के बीच में कितने सारे शेड आ गए? 255 शेड्स आ गए. ठीक है. तो दे आर कॉल्ड ग्रे इंटेंसिटी वैल्यूज. Fine. So you understand the meaning of digital image. Image is nothing more than a two-dimensional signal. It is defined by the mathematical function f of xy, where x and y are the two coordinates horizontally and vertically. Values of f of xy at any point gives the pixel values, means intensity values.
Image processing is a way to convert an image to a digital aspect and perform certain functions on it. ठीक है, जब हमने किसी इमेज को प्रोसेस करना है या इमेज को सेंड करना है या इमेज को स्टोर करना है, तो वी नीड टू कन्वर्ट दैट इमेज इनटू अ डिजिटल फॉर्म. ठीक है, इन ऑर्डर टू गेट एन एनहांस्ड इमेज और एक्सट्रैक्ट अदर यूजफुल इंफॉर्मेशन फ्रॉम इट, इट इज अ टाइप ऑफ सिग्नल टाइम व्हेन द इनपुट इज एन इमेज such as a video frame or image, and output can be an image or features associated with that image. For example, जैसे मैंने आपको बोला कि आपने कोई फोटो क्लिक की, ठीक है, आपको लगा कि इसका कलर कॉम्बिनेशन ठीक नहीं आ रहा, जैसे आप स्नैपचैट में फिल्टर्स लगाते हो, ठीक है, वो फिल्टर्स क्या उस इमेज की क्वालिटी को एनहांस कर रहे हैं, है ना. समटाइम्स बैकग्राउंड चेंज हो रही है या कंट्रास्ट चेंज हो रहा है, या जैसे आपने देखा होगा कि पर्टिकुलर फीचर्स, आईज के लेंस चेंज हो जाते हैं, लिप्स की शेप चेंज हो जाती है, तो दैट इज अ टाइप ऑफ प्रोसेसिंग. उसमें स्पेशल एल्गोरिदम, स्पेशल प्रोसेसिंग की है कि वो पर्टिकुलर फिल्टर एक पर्टिकुलर एप्लीकेशन पे वर्क करता है. ठीक है, वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग टेक्नोलॉजी टुडे विद इट्स यूज इन वेरियस बिजनेस सेक्टर्स. ग्राफिक डिजाइन्स फॉर्म द कोर ऑफ द रिसर्च स्पेस विद इन द इंजीनियरिंग एंड कंप्यूटर साइंस इंडस्ट्री एज वेल. सो देयर आर अ वाइड रेंज ऑफ इमेज प्रोसेसिंग एप्लीकेशंस एज आई हैव टोल्ड यू इन इमेज इन बायोमेडिकल. ठीक है, बायोमेडिकल में क्या एग्जाम्पल है, जैसे हम एक्सरेज लेते हैं, ठीक है, सीटी स्कैन करते हैं, एमआरआई होती है, अल्ट्रासाउंड्स होते हैं, दे ऑल कम अंडर द कैटेगरी ऑफ बायोमेडिकल एप्लीकेशंस ऑफ इमेजेस. ठीक है, उसके बाद वेदर फोरकास्ट है. ठीक है, बाय टेकिंग द इमेजेस विद द हेल्प ऑफ द सैटेलाइट वी कैन प्रेडिक्ट द वेदर. ठीक है, एग्रीकल्चर में दे आर टेकिंग द इमेजेस फ्रॉम द टॉप ऑफ द फील्ड दैट दे चेक दैट व्हाट आर द कंडीशंस ऑफ द क्रॉप. From the images they predict that whether the crop needs water or means when to give the water to the crops. So agriculture में भी इसकी application है. ठीक है, for example one of the basic application shown here, let's say this is the input image in which you see the noisy image. These dots, black and white dots are the noise. ठीक है, तो ये ओरिजिनल इमेज है. दिस इज नॉट अपेयरिंग गुड टू माई आईज. ठीक है, मैंने क्या किया, इसको फिल्टर किया. फिल्टर, अब फिल्टर का मतलब क्या है कि मैंने प्रोसेस किया. ठीक है, और मुझे ये आउटपुट इमेज मिल गई. ठीक है, तो दिस फिल्टर्ड इमेज इज द प्रोसेस्ड इमेज जो मुझे अच्छी लग रही है देखने में. ठीक है, इमेज प्रोसेसिंग मेनली इन्वॉल्व्स द फॉलोइंग 3 स्टेप्स. कौन कौन से इसके मेन स्टेप्स होते हैं? इंपोर्टिंग एन इमेज विद इमेज डिटेक्शन टूल्स. पहले हम इमेज को इंपोर्ट करते हैं, मतलब उसको डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए पहले हमें इमेज को इंपोर्ट करना पड़ेगा. ठीक है, डिटेक्शन टूल्स मतलब जैसे कैमराज और सेंसर्स हैं. एक्सप्लोरिंग एंड मैनिपुलेटिंग द इमेज, हम उसको चेक करते हैं कि कहाँ पे किस तरह की हमारी रिक्वायरमेंट है. An output where it can be improved or reported that is built an image analysis. ठीक है, फिर हम जैसे एक्सप्लोरिंग एंड मैनिपुलेटिंग में क्या है कि हम उसको मैनिपुलेट करते हैं डिजिटल सिग्नल में, फिर उसके बाद हम उस पर मतलब प्रोसेसेस लगाते हैं फॉर गेटिंग द बेटर आउटपुट. ठीक है, द डाटा वी कलेक्ट और प्रोड्यूस इज मेनली इमेच्योर डाटा, which means that it should not be used in applications directly for many possible reasons. जैसे पिछले वाले डायग्राम में मैंने आपको दिखाया कि ये नॉइजी इमेज है, तो इसको अगर आप यूज करना चाहोगे या आप इसको कहीं पे भेजोगे तो मतलब somebody says के क्या इमेज भेजी है, it's not the good one. ठीक है, तो आपको इसको प्रोसेस करके ही भेजना पड़ेगा. समटाइम्स लेट्स से कि आप कोई फॉर्म भर रहे हो, है ना, तो फॉर्म में उन्होंने कुछ इमेज का साइज दिया होता है कि आपने इतने साइज की इमेज अपलोड करनी है. तो वो क्या है कि वो उनकी एप्लीकेशन, उनकी रिक्वायरमेंट है कि उतने की आप अपलोड करोगे. ठीक है, तो दीज आर द प्रोसेसेस. हाउ अ डिजिटल इमेज इज फॉर्म्ड. सबसे पहले कि द बेसिक इंफॉर्मेशन
कि डिजिटल इमेज प्रोसेसिंग, इमेज कैसे फॉर्म होती है। अब आपको डिजिटल का मतलब भी पता है, आपको इमेज का मतलब भी पता है, आपको प्रोसेसिंग का भी मतलब पता है। अब इमेज को हम डिजिटल में कैसे कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। सिंस कैप्चरिंग एन इमेज फ्रॉम अ कैमरा इज अ फिजिकल प्रोसेस, पहले तो हमें उसको कैप्चर ही करना पड़ेगा, ठीक है। द सनलाइट इज यूज्ड एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी, ठीक है। आप अंधेरे में फोटो खींचो और लाइट में खींचो, देयर इज अ लॉट ऑफ डिफरेंस। जब तक लाइट नहीं होगी तो वो फोटो क्लिक नहीं होगी, है ना, मतलब क्लिक नहीं होगी का मतलब कि वी आर नॉट एबल टू गेट द प्रॉपर इमेज, ठीक है। अ सेंसर एरे इज यूज्ड फॉर द एक्विजिशन ऑफ द इमेज, मतलब इमेज को एक्वायर करने के लिए हमें सेंसर या कैमरास चाहिए। So when the sunlight falls upon the object, then amount of light reflected by the object is sensed by the sensor. जब कोई लाइट फॉल करती है किसी ऑब्जेक्ट पे, वो कुछ लाइट को एब्जॉर्ब करता है, कुछ को रिफ्लेक्ट करता है, ठीक है। जो एब्जॉर्ब कर ली वो तो उसकी मतलब हमें पता ही नहीं, जो रिफ्लेक्ट कर रहा है उसको जो सेंसर है वो कैप्चर करता है, ठीक है। जो हम कलर्स देखते हैं दे आर द रिफ्लेक्टेड आउटपुट्स, है ना। So when sunlight falls upon the object, then the amount of light reflected by the object is sensed by the sensor, sensor उसको sense करता है, and a continuous voltage signal is generated by the amount of sensed data, ठीक है। जो हमारा कैप्चरिंग वाला प्रोसेस है वो एनालॉग प्रोसेस है, ठीक है। अब उस एनालॉग को हमें डिजिटल में कन्वर्ट करना है। इन ऑर्डर टू क्रिएट डिजिटल इमेज, उसके लिए हमें क्या करना है, उसको डिजिटल में कन्वर्ट करने के लिए वी नीड टू डू द सैम्पलिंग एंड क्वांटाइजेशन, ठीक है। द सैम्पलिंग एंड क्वांटाइजेशन टुगेदर इज कॉल्ड डिजिटाइजेशन, ठीक है। The result of sampling and quantization results in a two-dimensional array or matrix of numbers which are nothing but a digital image. जब हम उस एनालॉग सिग्नल पे क्वांटाइजेशन सैम्पलिंग और क्वांटाइजेशन कर देते हैं, वो हमारी डिजिटल इमेज बन जाती है। डन। दिस इज द इमेज विच शोज लेट्स से द सनलाइट, ठीक है, सनलाइट फॉलिंग ऑन द ऑब्जेक्ट, ठीक है। इट एब्जॉर्ब सम लाइट एंड रिफ्लेक्ट सम लाइट, द रिफ्लेक्टेड लाइट इज sensed by the sensor, then camera, fine. This gives the sensor gives the analog output. This is a continuous signal, means analog. On this we are doing sampling and quantization. When we do sampling and quantization, we will get this type of digital output, and on this image we can do the processing, ठीक है। दिस इज हाउ अ डिजिटल इमेज इज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम अ एनालॉग सिग्नल, फाइन। पिक्सल्स, सैम्पलिंग्स, क्वांटाइजेशन, ठीक है। दिस इज द सिंपलेस्ट डायग्राम. We are having the illumination source, that is energy, light source, कोई भी artificial और natural light falling on the object, ठीक है, जिसकी हमने फोटो कैप्चर करनी है. देन वी आर हैविंग द इमेज सेंसिंग सिस्टम, लेट्स से कैमरा, सेंसर्स, वो फिर उसको कैप्चर करने के बाद दे आर डूइंग द डिजिटाइजेशन. डिजिटाइजेशन मीन्स सैम्पलिंग एंड क्वांटाइजेशन, एंड देन वी आर गेटिंग डिजिटाइज्ड आउटपुट, दैट इज कॉल्ड सैम्पल्ड आउटपुट, डिजिटल आउटपुट, ठीक है. जो ये बॉक्सेस हैं, these boxes are having particular values, that each box is called pixel, ठीक है, picture element. Higher the picture elements, better is the quality of the image, ठीक है. Why image processing is so important in any computer vision application? Why we are studying this coursework? Image improves the human perception to improve subjective image quality, ठीक है. समटाइम्स हमें इमेज की क्वालिटी को इम्प्रूव करना होता है, वहां पे हमें ये चाहिए होती है, ठीक है. improves the machine perception to simplify the subsequent image analysis and recognition. Image transformation for technical purposes, for example change of image resolution and aspect ratio for display on mobile devices,
ठीक है. Then pure entertainment, as you see, to get a artistic impression from the cool visual effects. क्लियर दिस स्लाइड. कि सबसे पहले हमें ह्यूमन परसेप्शन को इम्प्रूव करने के लिए चाहिए होती है, ठीक है, मशीन परसेप्शन के लिए चाहिए होती है. ह्यूमन परसेप्शन मीन्स दैट कि लेट्स से कि मैं आपको एक फोटो दूं, ठीक है, हो सकता है वो फोटो आपको अच्छी लगे, आपको ना अच्छी लगे, ठीक है. तो एवरीबॉडी इज हैविंग इट्स ओन परसेप्शन, ठीक है. और मशीन परसेप्शन क्या है कि वी आर हैविंग द परसेप्शन अकॉर्डिंग टू द एल्गोरिदम. जो भी हमारी एप्लीकेशन है उसके अकॉर्डिंगली परसेप्शन, मतलब कि हमें कैसा देखना है उसको, ठीक है. इमेज ट्रांसफॉर्मेशन फॉर टेक्निकल पर्पस. समटाइम्स जैसे मैंने आपको बोला कि आपने फॉर्म भरना है कोई, ठीक है, तो किसी ने कोई साइज मांगा है, किसी ने कोई साइज मांगा है, तो उसको ट्रांसफर करने के लिए अलग अलग वेज है. तो एंटरटेनमेंट, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी स्नैपचैट के लिए, ठीक है, उसमें अलग अलग फिल्टर्स हैं, तो दैट इज फॉर द एंटरटेनमेंट पर्पस. सो दिस इज अबाउट द लेक्चर. Hope you understand. Any doubts till now?